ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की क्लास में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट essential functions of language by Roman Jakobson. So Roman Jakobson is one of the prominent linguists of all times, and we're going to talk about different functions of language according to him. तो उसके मुताबिक language के there are 6 basic functions, and we're going to talk about all of them one by one. So my name is Akif Nawaz Khan, and I welcome you all to this video, and hopefully this video would be productive and fruitful in order to learn about languages. So the first function of a language is referential function according to Roman Jakobson. So what do we mean by referential function? The referential function is all about describing. Can you describe what you see, what is happening around, and how you feel about it? So इसका मतलब ये हुआ कि referential function of language is all about describing. Means जब आप describe करते हैं चीज़ों को, जो चीज़ें आप देखते हैं, जो आपके इर्द गिर्द हो रहा है, और जो चीज़ें आप फील कर रहे हैं, उसके बारे में जब हम बात करते हैं, so that is what we call as the referential function of language. अब जब हम किसी सीन को डिस्क्राइब करते हैं कि द स्काई इज़ ब्राइट ब्लू विद अ फ्यू वाइट क्लाउड्स स्कैटर्ड अक्रॉस, इसका मतलब ये है कि हमने एक सीन को डिस्क्राइब किया है इन लैंग्वेज. अब डिस्क्राइब करने के साथ साथ हम एक्सप्लेन भी करते हैं. द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन 5 minutes लेट एंड पैसेंजर्स क्विकली बोर्डेड. अब यहाँ पर हमने एक सिचुएशन को क्या किया है, एक्सप्लेन किया है, दैट वाज गोइंग अराउंड अस. ठीक हो गया. अच्छा, नाउ द नेक्स्ट वन इज इमोटिव फंक्शन. What do we mean by emotive function? Is all about expressing something. We do not only state facts but also add a little emotion to our conversation. ना सिर्फ हम facts को state करते हैं बल्कि साथ ही साथ हम emotions को भी add करते हैं अपनी conversation में. जिस तरह for example, if I'm listening to a song and I say I love this song, it means that I'm adding my emotions with the help of this sign of interjection. Oh no, I forgot my keys. Again, not only I have described the situation, but also I've expressed my feelings and emotions. Wow, that is amazing. So that is what we call as emotive function. The next one is the conative function. The conative function is concerned with command. We all like to order people around, but do we feel confident enough in the target language to try out the imperative? इसका मतलब ये हुआ कि कोनेटिव फंक्शन ये है कि जब हम कमांड देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं दूसरे लोगों को, और इसमें एक एलिमेंट ये भी आ जाते हैं कि क्या हम इतने कॉन्फिडेंट होते हैं दूसरे लैंग्वेज में, जो टारगेट लैंग्वेज है, उसमें अपनी बात को अच्छी तरीके से कन्वे करना इन टर्म्स ऑफ कमांड्स एंड रिक्वेस्ट. Go on, open it, don't touch, it's dangerous. Again, यहाँ पर हम command का element सामने लेके आते हैं. Please sit down, close the door, don't be late. So these are the kind of examples through which we can say that conative function is all related to command and to request, like please sit down. The next one is the poetic function. Poetic function is about choice of words wisely. How careful you are when you speak. Do you attempt to be eloquent? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम अल्फाज को वाइजली और केयरफुली इस्तेमाल करते हैं, it helps us develop an appreciation for the literary and spoken word tradition. और इसी की वजह से हम लैंग्वेज में जो लिटरेरीनेस है और जो स्पोकन वर्ड ट्रेडिशन है, मीन्स जो पहले से चलता आ रहा है, उनको हम क्या करते हैं, एक्सप्रिशिएट करते हैं, और एक अच्छे केयरफुल अंदाज में हम अपने अल्फाज को दूसरों के सामने रखते हैं. ऑफ द टारगेट कल्चर एंड इज़ एसेंशियल इन हायर लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन. जब हम हायर लेवल कम्युनिकेशन करते हैं इन प्रोफेशनल एकेडमिक इन्वायरमेंट आर समवेयर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो वहाँ पर हम क्या करते हैं, पोएटिक फंक्शन को यूज़ करते हैं. जैसे कि अगर मैं कहूँ कि अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9. अगेन दिस इज द आर्टिस्टिक यूज ऑफ लैंग्वेज. द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज, roses are red, wilds are blue, I wrote this poem just for you. So these are the kind of expressions through which
an ordinary statement is expressed in an extraordinary manner. So that is what we call as the poetic function of language. Next one जो है phatic language, phatic function of language. So क्या मतलब है इसका? It's popularly known as small talk or engage for the sake of conversation. जब हम छोटी बातें करते हैं, छोटी छोटी chunks यूज़ करते हैं और conversation हमारा मकसद हो, is the non-referential use of language to share feelings or establish a mood of sociability rather than to communicate information or ideas. मीन जब हम सोसाइटी में लोगों के साथ घुल मिलते हैं तब हम फैटिक फंक्शन ऑफ लैंग्वेज को यूज़ करते हैं. इसका मतलब ये नहीं होता कि हम इंफॉर्मेशन और आइडियाज़ को पास ऑन करते हैं, रादर हम उस इन्वायरमेंट में एडजस्टमेंट के लिए सच काइंड ऑफ स्मॉल टॉक्स आर यूज्ड. जिस तरह के हाय, हाउ आर यू, नाइस वेदर टुडे, good morning. So these are the kind of expressions which comes under the term of phatic function of language. The next one is metalingual function. Metalingual function क्या है कि it requires analyzing language while using the target language. It can be tricky, but it really is the only way to escape your mother tongue and fully immerse yourself in another register. इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लैंग्वेज को एनालाइज करते हैं उसी लैंग्वेज को खुसूसी तौर पर जो कि दूसरी लैंग्वेज हो, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल माई मदर टंग इज पश्तो, बट द टारगेट लैंग्वेज दैट आई वांट टू कम्युनिकेट इन इज़ इंग्लिश लैंग्वेज. तो ये एलिमेंट जो मेटालिंगुअल फंक्शन है ये ट्रिकी भी हो सकता है, बट इस ही फंक्शन की वजह से हम अपनी मदर टंग से स्विच करते हैं टारगेट लैंग्वेज की तरफ और हम फुली उसमें इमर्स हो जाते हैं, फुली इंगेज हो जाते हैं और इसी वजह से हमें लर्निंग में आसानी हो जाती है. सिंपली मैं ये कह सकता हूँ कि जब आप किसी भी ज़ुबान के ग्रामर के बारे में बात करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि दिस इज़ द मेटालिंगुअल फंक्शन, जब हम ग्रामर सीखते हैं. सो डेफिनेटली वी आर यूजिंग द मेटालिंगुअल फंक्शन के रन इज़ अ वर्ब. अब रन इज़ अ वर्ड, हम मीनिंग के साथ नहीं कंसर्न, हम किसी और चीज़ के साथ नहीं कंसर्न, रादर वी आर कंसर्न विद द ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ इट. सो रन इज़ अ वर्ब. व्हाट डू यू मीन बाय सिंटैक्स? इट मीन्स कि हम ग्रामर के एलिमेंट्स के बारे में अब यहाँ पर डिस्कशन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं. तो जब आप किसी भी लैंग्वेज के किसी भी टॉपिक के बारे में स्टडी करते हैं, उसके बारे में आप डिस्कशन करते हैं, so that is what we call as metalingual function. Like how do we pronounce this word? So these are the kind of functions through which we call that these are the metalingual functions of language. So I hope कि आपको समझ आ गई होगी different functions according to रोमन जैकॉब्सन, जिन्होंने 6 चीज़ों के बारे में बात की है. उसमें रेफरेंशियल भी आ जाता है, फैटिक भी आ जाता है, पोइटिक भी आ जाता है, मेटालिंगुअल भी आ जाता है और इमोटिव भी आ जाते हैं, कोनेटिव. ये तमाम जो फंक्शंस उन्होंने डिस्कस किए हैं, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी. एंड वाई दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, ये इसलिए ताकि हम लैंग्वेज को अकॉर्डिंगली मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए यूज़ कर सके for the sake of effective communication. So that's all from my side. We'll see you in the next one. Stay tuned. Allah Hafiz.